So I welcome Dr. Hemant Kumar Jain sir to please start the session. He is going to chair this session for today. So welcome sir, and please sir proceed. It is my honor to introduce Dr. Atmaram Pawar. He is working as a principal and professor of pharmaceutics at Pune College of Pharmacy, Bharati Vidyapeeth, deemed to be University Pune. He has rich academic experience over 30 years. He has 4 patent applications, 107 international and 32 national peer-reviewed research papers with Google Scholar H Index 33. Scopus listed 99 publications and I-10 Index 70. Dr. Pawar has guided 11 PhD students. He has published 3 books in Indian languages. He has also published more than 70 articles in leading newspaper for promoting pharmacy profession. He is recipient of 12 prestigious international and national awards. He is appreciated by Maharashtra Sahitya Parishad for publication of 20,000 copies of Marathi book Aushadhi Ghetana. He will speak on interactive teaching for encouraging innovation and critical thinking. Welcome, sir. Thank you. Thank you. So now I request to Pawar sir to interact. Yeah. Allow me to share the screen. Yes, sir. Yes. So it is visible? Yes sir, it is visible in full screen mode. It is moving also. Yes sir. Yes sir. Okay. So very good morning. After the nice inauguration of the STP on the very focused area, the need of a day where the India is really working hard with all the innovations and skills in promoting the innovations and skill in India. For that, the basic thing is our teaching. Really, our teaching is supporting that innovations and skill development. And as a teacher, I'm here to talk on as per what experience I have. It is the original slides and original thought process on the basis of my experience. Really, how we can go ahead to encourage the innovations and critical thinking for the further growth of India as the industrial or the business, the country of the globe. So I'm proposing the interactive teaching for the encouraging the innovations and critical thinking in this STP, STC of healthcare startups, evolutions and revolutions. And I appreciate the work done by Dr. Vivida. She's doing very nice. And the 1 week is ahead. And I hope very success of this. Really, it will be evolution and revolution of the STP also. And thanks, Dr. Jain sir, for introduction of mine. So we are moving ahead. As I told just now, we are the component of this brand, Bharati Vidyapeeth deemed university. And as somebody told, and nowadays this think that Shark Tank India is gaining very good acceptance. And after 3 Idiot picture, I value myself. So everybody should watch this channel, watch this show. And every college in the welcome or at the end when there is a career development, so can show to the students these 2 things. One is a 3 Idiot picture, 5 to study. And secondly, the Shark Tank India, to understand what is understanding, to think what is the thinking, to analyze what to analyze, to check the market survey, our standing,
who will give finance, how the business can be grown, and how feedback can be taken. And in this, all this, we have to really see in that picture, really qualification matter, because many engineers are promoting healthcare. Means there is no any linkage in between the degree that marks. But really nowadays education is to make you a thinker, to make you all-rounder person, not to make you engineer or a pharmacist. So though the students take an admission in the pharmacy, don't pressurize them to work as a pharmacist. It is good, very good if they work as a pharmacist with the innovations, but it is not necessary nowadays. And therefore I can say, so it is not need to get depressed if you not, or your kid not get admission to the MBBS, correct? So even the CA are earning more than the MBBS now, though who are doing the just BCom. So BPharm and BCom, there was a problem in the initial days, but now I can say the BCom person with the GST on all these things, he is earning more respect and money in the society. So what is required is really we are providing all what is needed to be a good person. So therefore, so I'm from my point is on the critical thinking, creative thinking, how it can be inculcated, how it can be developed, so that it will lead to the innovations. And definitely only innovations will now lead to the product, because for monotonous products now there is no market. So if really want to increase our industrial output, because India is considered as, and it is there, it is the country of youths. So all youths, if they are really motivated for thinking and innovations, India will be the top country, because the topness is nowadays is judged, and it is estimated in terms of GDPs and the business. And therefore China is on the top for the business, because it is the most creative country as per the record of 2019 what I got. And the innovations are only responsible for the industrial growth. And therefore see the India's number and see the China's number, correct? So what is the thing behind this? That is really we are providing the degrees or we are providing the innovations. So India ranked 48th at the Global Innovation Index. So therefore my focus is, can education be a creative to create critical and creative thinking? As motto of all the education, including NAC or NBA, or our vision mission is to demonstrate knowledge. In the pharmacy, we demonstrate the knowledge of pharmaceutical sciences from problem solving. So really we provide the knowledge. Really we hope or expect that our student will solve the problems. Whether he will analyze the issues, he can criticize, organize, improve, manage, document. क्या करता है स्टूडेंट हमारा? रेगुलरली हम प्रैक्टिकल लेते हैं, उसमें ये होता है. It is a problem based learning, or it is a theoretical information transfer from one book in the class and from class to the answer book? Is it the way of only information transfer or knowledge? Whether the student communicate effectively, because in the pitching, as you've seen in that everywhere now the pitch word is becoming the main word, correct? So where he have that capacity to communicate effectively and scientifically, provide innovation solutions, and whether he will be a lifelong learner. So all these things we have to see. And therefore this slide I made when I started working on the interactive teaching, the objective of teaching. So your experience may be different, but my experience is to completion of syllabus within the semester pattern or yearly pattern is our objective. To conduct the examinations, sessional examinations, university examinations
is our objective of education. To have very good result. If it is 100% result, no problem. But nowadays there is no any value for 100% results. That news media will not take any your news also. The student should be in the university rank. Again, nowadays many students are there in university ranks. So these things are really we made it's an objective, but really is it objective? And if it is objective, whether we are missing something. Really, by completing the syllabus, we are ensuring that knowledge transfer is taking place or not. If our aim is only to complete the syllabus, then henceafter there is no need of a teacher for a completion of syllabus. So since the AICTE and UGC, PCI are demanding to have full-time teachers, but really they may come because the things are getting changed very drastically. Our SWAYAM videos, all the MOOCs and the videos what we made in the last 2 years due to the corona in the e-classes, correct? They are fantastic to cover the syllabus. 5 to pay lakh of rupees. Again, what are getting less than that also, the people may not get it. Because if our aim is to complete the syllabus, but if our aim is for knowledge transfer, we'll see, is there a need of a teacher or not? Exams, really it is providing any clue regarding the understanding of concepts, or it is just memory based testing system to check the memory of students. जो रट्टा ज्यादा मारता है वो गोल्ड मेडलिस्ट बनता है, ऐसा कुछ है? Results, it is measure the skill and intellectual development of students. आप ऐसा भी बोलेंगे नहीं अच्छा मार्क्स मिला तो अच्छे जॉब मिलता है. Whether the job is only depends on the good marks. तो इतना ही है, तो I think it is missing. यूनिवर्सिटी रैंक देखो, आपकी यूनिवर्सिटी में देखो जो लास्ट 2 साल 3 साल 5 साल रैंकर आ गए, वो जीपैट में कहा थे, वो कैट में कहा थे, वो अभी क्या कर रहे हैं? So whether this university's rank is a contribution of teachers to give 29 marks out of 30 in the sessional examinations and 99 marks in the 100 in the annual examinations. So really we have to check it. The career growth of that ranker, the career growth of gold medalist, correct? So therefore, is our education is providing the concepts, opportunities, skills, innovations for overall development. The thinking and reasoning ability, are we developing? The leadership qualities, are we developing? So these are the points we have to see. Then and then India will change. Otherwise, as said by the Pawar madam, again the Maharashtra is lacking too much. Correct. So the things we have to change, and now India provided very good atmosphere for that change. Otherwise, always our objective of education is, देखो माँ पीट रही है बेटों को, क्या बोल रहे, मैंने इसके को कहा कि पढ़ ले अच्छी बीबी मिलेगी, मगर ये तो कहता है पप्पा भी एमफॉर्म पीएचडी है, तो मार खा के बैठा है. भाई व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? अच्छी बीबी मिलना, अच्छा हस्बैंड मिलना, ये ऑब्जेक्टिव है, या हायर डिग्री लेना? बीए बीकॉम भी डिग्री थी ना पहले, अभी बीकॉम पूना में तो जितना भी एडमिशन 12th के बाद साइंस में होता है उससे ज्यादा अभी बीकॉम में हो रहा है. बीकॉम बीबीए लाइक, करेक्ट. तो देखो हायर एजुकेशन की डिग्री चाहिए, तो नहीं लोग 1990 से बोलने लगे हायर एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, जॉब नहीं मिलता. हमारा विजन क्या है? जॉब नहीं मिलता, तो प्रोफेशनल डिग्री कर दो. तो इंजीनियरिंग आ गया, फार्मेसी आ गया, अभी इतने आ गए हैं कि इंजीनियरिंग का तो सबको मालूम है क्या हो गया. अभी फार्मेसी भी हर एक तालुका प्लेस पे फार्मेसी है. पूना में, सिर्फ पूना में मोर देन 30 फार्मेसी कॉलेजेस आर देयर. तो पूना यूनिवर्सिटी का नंबर, द रीजन है पूना यूनिवर्सिटी की, उसका 70 के ऊपर गया है. तो सिर्फ हमें जॉब ही चाहिए, तो जॉब कैसा मिलेगा? नहीं तो मार खाना पड़ेगा बेटे को कि भाई तेरा बाप जॉब नहीं कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, एमकॉम पीएचडी है, पढ़ा तो बहुत है, वो डिस्टिंक्शन में भी था, पीएचडी भी हो गया, मगर अभी वो क्या कर रहा है? सो फॉर दैट वी थॉट एंड आई वर्क दिस अंडर माय AICTE UKRI change management project, where I selected and worked on the interactive teaching in higher education
for effective knowledge dissemination. And in the college view, I said the improved student participation also, where Dr. Vivida and Dr. Vinod helped me in this manuscript, and I'm going to speak on this published original article, what we did in 2020. So we did a survey and we had a questionnaire. We have the demonstration in the college also. So it is two type work. One is a survey of 450 participants, where the teachers are there, students were there, many common man and parents, all they were contributed in this survey. And plus we did some demo in our college. So objective of present education is actually, objective is very nice. If we see the output, objective is lifelong learning with knowledge and skill development. And nobody said that objective is to get good jobs, correct? So really theoretically, our objective is a lifelong learning for knowledge and skill development. So from where we get knowledge? That syllabus, theory, practical assignments, correct? And that knowledge really we provide in terms of regular classes. Many of our teachers till date, they are dictating notes. They are dictating notes. Many are have a only one way thing. They read the PPTs. क्योंकि अभी गवर्नमेंट बोलता है, यूजीसी बोलता है, पीसीआई बोलता है कि ऑडियो विजुअल यूज करो, तो हमारे पास पीपीटी आ गई. मैंने इतना देखा है, तो पीपीटी वाला टीचर हमेशा खुश रहता है. वो क्या करता है कि पूरा नोट्स उधर डालता है. कभी भी आप बोलो पेन ड्राइव लेके कॉलेज जाएगा, क्लास जाएगा, लेक्चर ले लेगा. कैसा पीपीटी का लेक्चर है आगे हम देखेंगे. कई लोग फुल ड्यूरेशन लेक्चर लेते हैं, खुद ही बोलते हैं, बच्चों को बोलने के लिए एक भी चांस नहीं देते. बच्चा बोलता है तो देखता है, देखूंगा मैं तुझे एग्जाम में. ये बात चलती थी. और जूम में तो कमाल हो गई. जब ये कोरोना चालू हो गया, तो अप्रैल 2020 का देखो, 23 अप्रैल से मेरा पहला लेक्चर हुआ था कॉलेज के जूम पे. हमने जूम कैसा चलाना पड़ा, और पूरा अटेंडेंस था. सब स्टूडेंट टीचर पूरे अटेंडिंग थे. बाद में एक साल के बाद मैंने एक फोटो निकाला जुलाई का, सिर्फ मेरा फोटो रहता था और सब फोटो गायब, कैमरा गायब. आज भी गारंटी नहीं कि जो भी 50 लोग है, they are listening to me or not. It is the innovations, it is the skill development in the online learning teaching process, whether attendance is more important than the attention. तो बच्चों का और टीचर का एक ही लाइन हो गया. अटेंडेंस भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए हमें. एसटीपी का सर्टिफिकेट चाहिए, एफडी दैट क्यूआईपी किया कंप्लीट स्किल का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, और बच्चों का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको बोलते हैं मार्क लिस्ट. सो आवर एजुकेशन इज मूविंग टुवर्ड द अटेंडेंस एंड सर्टिफिकेट और अटेंशन एंड इनोवेशन, दैट वी हैव टू सी. Therefore, we made another question. As per you, how much % of knowledge and skill is gained by student during their UG and PG studies at present? देखो, 50 to 60% students said our education is completely exam oriented. क्योंकि टीचर 10 बार बोलता है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका रट्टा मारो. स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, उसका डबल बॉन्ड भी मिस नहीं होना चाहिए, रट्टा मारो. सब हम रट्टे के पीछे पड़े हैं. एग्जाम में क्या आ जाएगा, एग्जाम में कैसा बैठने का. बच्चा भी बोलता है एग्जाम हो गई भाई डिलीट करो, अभी कुछ रखने की जरूरत नहीं है. सो देखो, लेस देन द 50% दैट इज लेस, इट नॉट प्रमोट द थिंकिंग आल्सो. So why it is happening? Because we are providing information. We are not making any efforts to convert that information into knowledge, and that we'll see how to convert information into knowledge. Therefore, this is the first, since I'm a person of pharmaceutics, and as you know, Dolo, Crocin, well-named established brand of a paracetamol. So really, can you explain why paracetamol is formulated as a tablet? 325 milligram tablet, 125 milligram tablet, 500 milligram tablet, 650 milligram tablet. 500 milligram tablet is round, 650 is capsule shape. Why it is converted into elixir? Now elixir is banned. Why it is converted into syrup?
Why the syrup and suspension is available for paracetamol, but one is monophasic, another is biphasic. Why the drops are there? The liquids are the three types. One liquid is a drop, another is a syrup, third is a suspension. Elixir is banned nowadays. Banned means nobody is manufacturing it. Plus we have the injections. So simple paracetamol, why it is converted in a so much dosage forms? Really, it should be interactive, but online the thing hai, फिर भी if anybody want to give answer for anything, it is welcome. So my point is, we have to rank. Again, I made this as a part of my that project, this slide. So why to convert drug into dosage form? Because what is the issue? In the question, always we write define dosage form, discuss dosage form, give different reasons to dosage form. So all the reasons are pakka hai, is sub reason are there, but can we rank? Really, it is the dosage form to improve viability is the first answer. To improve environmental stability is the first answer. Ease of administration is the first answer. Ease of manufacturing is the first answer. Improve acceptance by patient and patient safety is the first answer. Or convenient to handle and store is the first answer. Anybody? It's okay. So we have to make a case. What is my issue is we should make a case. Instead of asking a question in a discuss, define and classify, our teacher should make a case and ask the student to think on it. And when we think, he will have a different answers. Just analyze that answer. Why he is thinking like this? What he is giving answer, it may not be correct, but it may be very close to the answer. So answer is not important. As per me, answer is not important, but how he is thinking is important. So what is today's practice of examinations? We give the marks to the thought directly, but I expect the thinking process is more important for innovations. Therefore, we should rank it, and real is a ease of administration for a particular route. Because if oral is a route, then for pediatrics, that liquids are fantastic than the adults. But in the case of adults, though the liquids are easy to administer, the handling and storage is requirement for adults. Therefore, we should rank this, and it shows that the final is the bioavailability. Therefore, nowadays, all that bioequivalence studies, BA studies, they came in the picture. So it is the last choice, correct? If the drug is bioavailable, less or more, correct, we can increase it. But if it is less bioavailable, increase the dose. This is the only solution we are having. So in this way, really our students are able to think and give the reasoning for this. Important is wrong or right. He should give the reasoning for that wrong answer or right answer. Then this is called as the thinking process. The same thing I'm taking in the practical. So those who are my students might be there, correct? They remember me that my practicals duration was usually at that time our practical timing was 10:30 to 2 or 10 to 2 or 11 to 2. But I extended practicals up to 6 evening. Why? Because my students and I digested this information as a knowledge and created a questions. Why each and every liquid have a label that each 5 ml contains something. If it is paracetamol 125 milligram, it is Astalin 4 milligram, but always each 5 ml. Correct. No any book gives this answer. Only MDP have this answer. Correct. Why this is a 5 ml? Why 125 ml? Why it is a prescribed dose? What is the prescribed dose of drug? Why 125 ml? What is the calculation for that? What is the role of additives? Why invert syrup क्यों है भाई लिया? Alcohol क्यों लिया? Propylene glycol क्यों लिया? अबे alcohol क्यों कम किया? Concept of solubility. Really that 125 is soluble in 5 ml or not? If it is not soluble, what is did there? So likewise, if we really digest that clear cut, then your practical में मजे में जाएगा. मगर होता है क्या? हम एग्जाम में भी बोलते हैं कि रट्टा मार के वो फॉर्मूला का, तो बच्चा रट्टा मार के आता है यार, चीट बना के आता है. क्योंकि we expect that he should write invert syrup 50 ml. The invert syrup 50 ml quantity was not important.
But why inward syrup is added and approximately in what quantity it should be used? This was important. But unfortunately, we are creating a pressure during the practicals and asking our students रट्टा मार के आओ. उसका क्या फायदा भाई? So एक रट्टा मारेगा तो एक क्रोसिन सिरप का रट्टा मारेगा, एग्जाम होने के बाद वो डिलीट हो जाएगा. But if we teach in a case based thing, he can think for other all the syrups, he can think for any drug delivery systems. Means we are giving him concept, not an answer. So our student should give the logical answer. He should think logically instead of giving the. So this is expected in NEP also. So fortunately, we are having the skill development innovation on one side, and India is thinking to change all education pattern, where the education toward the less content. मैं एक डायलॉग मारता हूं हमेशा, our syllabus is too much. इसका मैं बोलता हूं, we made the syllabus pregnant but non deliverable. उसकी डिलीवरी नहीं होती. इतना भरा है उसमें कि टीचर सिर्फ जाता है, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. So teach less. So teacher should teach the concept. You should have the flip the concept, flip the classroom concept. Already हमारे पास वीडियो है, आपने नहीं बनाए तो किसी ने तो बनाए है, स्वयं की वीडियो है. डिक्लेयर करो चैप्टर, उनको पढ़ने के लिए बोल दो और आप जाओ, सिर्फ कंटेंट कंसेप्ट वाइज बताओ. उधर डायलॉग होना चाहिए, बच्चे बोलने चाहिए, आप बोलने चाहिए, तो ही critical thinking promote होगा, which is written, and more toward the learning about how to think critically and solve the problems, how to be creative and multidisciplinary. ये हमें पढ़ाना है भाई आज. नहीं तो फार्मेसी का बच्चा इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेगा, कोग्नोसी का बच्चा स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ेगा, केमिस्ट्री का बच्चा कोलॉजी नहीं पढ़ेगा. कैसा चलेगा भाई? केमिस्ट्री वाले ने तो कोलॉजी पढ़ना चाहिए, कोलॉजी वाले तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहिए, कोग्निसी तो सबने पढ़ना चाहिए कोरोना से वजह से. तो आज तो रियली कोग्निसी टॉप 1 प्रोफेशन पीजी का होना चाहिए था, नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? कि वी आर बिहाइंड द जॉब्स. कहाँ जॉब ज्यादा है, कहाँ जॉब ज्यादा है. तो आज देखो, अमेरिका, जर्मनी, बहुत सारे कंट्री ने हर्बल मेडिसिन निकाले कोरोना पे. इंडिया से नहीं निकला, मगर इंडिया से पूरा रॉ मटेरियल जाता है. इंडिया से पूरा रॉ मटेरियल जाता है, जर्मनी जाता है, यूएस जाता है, वहां का फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है, पूरा प्योरिटी होती है, QACR होता है, बायोलॉजिकल टेस्टिंग होता है, मोलिकुलर बायोलॉजी टेस्टिंग होता है, टॉक्सिसिटी होती है, प्रोडक्ट मार्केट में आता है, और हम हमारा आयुर्वेदा का बेचते हैं प्रोडक्ट. कौन तो एक बाबा आता है, बोलता है प्रोडक्ट अच्छा है, तो हमें लगता है वो ले लो. भाई साइंस कहाँ गया था? साइंस कहाँ है? So this is the need of a day under NEP to make the education more experimental, more holistic, more integrated. Plus, we should have the basic arts, crafts, humanities, games, and language. मैं इस पर आ जाऊंगा कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है. हम सोचेंगे अभी हमारे क्लास में क्या होता था और क्या होता है. ये देखो, हमारे कई टीचर लोगों ने स्टाफ रूम में जो भी जोक्स कम रियली जोक्स व्हाट हैपन इन द क्लास जो बोले हैं, वो आपके सामने मैं देता हूं. गिव द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड. ये जगदीश कंसे सर ने एक टाइम, उनके जब थे हमारे टाइम, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. तो एक बेटा जो बिहार से था, वो क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. सर वो सोडियम क्लोराइड को कैसी प्रॉपर्टी होगी? तो प्रॉपर्टी यानी जायदाद, गाड़ी, बंगला, ये सब संपत्ति है, वो तो ह्यूमन बीइंग को होती है. सोडियम क्लोराइड तो एक केमिकल है. देखो हम कहां से कहां चले हैं कि बच्चों को मालूम नहीं कि प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, तो उसको प्रॉपर्टी का मीनिंग सब इतना लगता था. तो मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा ही अच्छा था, शायद टीचर रॉन्ग रहेगा. इज द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग और राइट? इस पर हमें जाना चाहिए. दूसरा है कि एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी. जो बीबी जैन आज प्रिंसिपल है कहां से, उनको एक क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चों ने जो आंसर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर अ मैरिज अ बेबी ग्रो इन स्टमक ऑफ वाइफ.
क्योंकि मराठी में बोलते हैं पुट एने, तो वो बच्चा मराठी वाला था, महाराष्ट्र का था, वो बोला। तो मेरा क्वेश्चन आ गया कि भाई मैरिज लगता है और स्टमक में बेबी ग्रो होता है, और ये शुड बी वाइफ और फीमेल, इसका डिफेक्शन होना चाहिए ना। डिफेक्शन करेंगे आप तो ही नॉलेज जाएगा, नहीं तो नहीं होता। आज भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, बहुत कंफ्यूजन है। अभी थोड़ी दुनिया आगे जा रही है, मगर इतने बातें हैं। तो ये मंगेश देशपांडे करके हमारे पास टीचर थे, आज इंडस्ट्री में है, उन्होंने यही पूछा था कि भाई पीडियाट्रिक डोज इज अ फ्रैक्शन डोज। तो बच्चा बोलता था सिंस माउथ ऑफ किड इज वेरी स्मॉल देन द अडल्ट, वो डोज फ्रैक्शन में है। तो इतनी बातें हैं। तो मैं बोलूंगा बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बराबर चले थे। टीचर पढ़ा रहा था, टीचर सैलरी ले रहा था, टीचर ने क्या किया? इसका आंसर हम इसमें देंगे कि हमारे पास स्ट्रेंथ है 100, हर एक कॉलेज ने 60 का 100 किया। आईसीटी एक ही कॉलेज है आज कि जिसकी आज भी स्ट्रेंथ 30 है, जो फार्मडी है उसकी स्ट्रेंथ 30 है। बेस्ट क्लास इज द 30 इनटेक क्लास। मगर क्या करना भाई, कॉलेज भी चलाना है, तो 60 थे, उन्होंने भी 100 किया। अभी 100 क्लास में कौन टीचर क्या बताता है, किसको समझता है, किसको भी नहीं मालूम। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इनविजिबल, ऐसा होता है। इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, जो फार्मेसी प्रैक्टिस का कंसेप्ट है, देखो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ नहीं होता। बच्चों को बोलेंगे हम तो हमेशा बच्चा रट्टा मार के उसका आंसर देता है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑलवेज आई आस्क व्हेन वी क्राई, व्हाई, जो हमारा आंसू है या बारिश होती है तो ड्रॉप क्यों बनता है? और ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं तो मेरे पास इतने अलग अलग आंसर मिलते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं कि वो सर्पिटेंशन के बारे में बोलते हैं। तो आई एनालाइज इट। एक्चुअली दिस पीपीटी मैंने मेरे कॉलेज में बनाई। एक टीचर का मैंने स्टूडेंट को पूछा कि भाई इसका क्यों है आंसर, कि सर हमारे टीचर पीपीटी लेके आती है और वो टीच कैसा करती है, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस सो एज टू काउंटर बैलेंस, ब्ला 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 बोलती है, और दूसरी साइड खुलती है ना। हमें रियली मालूम सरफेस टेंशन क्या है, मगर जब एग्जाम आती है तब बच्चों को टेंशन आता है, क्योंकि उसने सरफेस टेंशन समझा ही नहीं था, क्योंकि हमारे टीचर ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पीपीटी थ्रू की थी और सिलेबस फिनिश किया था, मगर कभी भी नहीं हुआ कि व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज द एडहेसिव फोर्स, 5 स्मॉल क्रिएचर्स वॉक ऑन द वाटर, इसके बारे में हमें कभी भी बात नहीं हो गई, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है आज टीचिंग की। एट प्रेजेंट कौन सी मेथोडोलॉजी है? डिक्टेशन वाली है, फिर भी आज डिक्टेशन वाले टीचर बहुत कम हो गए, हमारे टाइम बहुत थे। हमारा तो कॉलेज 7:30 बजे चलता था, और एक टीचर हमारे थे रिस्पेक्टेड टीचर, कई लोगों को मालूम रहेगा, वो टेक डाउन टीचर थे, सुटिक्स के ही थे, बहुत लिखना पड़ता था, वो 3-3 बुक लेके आते थे। अभी वो कम हो गया। 70% टीचर्स आर चौक एंड बोर्ड चलता है, उसका डिक्टेट नोट करते हैं। 60% लोग बोले कि वेरी लेस टीचर्स आर इंटरैक्टिव टीचिंग। सब बोले, लोग बोले मीन्स 80% लोग बोले कि इंटरैक्टिव टीचिंग नहीं होता है, और बहुत कम लोग बोले मीन्स 60% तो डायरेक्टली बोले कि भाई यहाँ हमारे यहाँ इंटरैक्टिव कुछ भी नहीं होता। ये हमारा जो सर्वे है ना, वो सर्वे का रिजल्ट है। तो इंटरैक्टिव का नहीं होता तो रट्टा मारने का काम होता है, और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेशन है। इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रॉब्लम इज अवर लैंग्वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग। हम तो मराठी में पढ़े, जो पढ़ते थे वो समझता था, मगर अभी क्या हो रहा है, मेरे गांव में भी मेरे भाई के जो लड़के हैं वो सब इंग्लिश मीडियम जाते हैं, पूरा रट्टा मारते हैं, 10वीं तक फेल नहीं होते, मगर उनको कुछ भी नहीं समझता। मगर जब खुद के लैंग्वेज में बात होती है तो देखो क्या होता है। यहाँ 3री या 4थी स्टैंडर्ड का लड़का है, उसको मराठी में एक एग्जाम पूछा था की तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही स्थळाचे वर्णन करा, और आंसर
नाइसली गिवन आई थिंक, बट इट इज अ रॉंग, 0 मार्क्स. वो बच्चों ने क्या लिखा है, आमच्या घरी एक सर आले होते, ते खूप चांगले होते, त्या स्थळाला घर गाडी होती, मुलगा शिकलेला होता आणि संसार चांगला करेल असं वाटत होतं. एक 3ऱ्या वर्षाचा मुलगा, 3ऱ्या शाळेतला मुलगा, की लग्नाबद्दल आणि मुलगा मुलीबद्दल एवढं सुंदर लिहू शकतो आणि त्याला टीचरनी रॉंग का दिलं, याचा आन्सर आहे स्थळ मीन्स लोकेशन, इट इज टूरिस्ट स्पॉट, पर मराठी में स्थल को रिश्ता बोलते हैं और या मैरिज प्रपोजल बोलते हैं. तो टीचर का एक्सपेक्टेशन था कि वो एक पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में वो बोलेगा, जैसा शनिवार वाड़ा पुणे में है. तो टीचर वाज एक्सपेक्टिंग दैट द स्टूडेंट विल राइट ऑन द शनिवार वाड़ा एज अ पिकनिक स्पॉट, बट दैट किड रिटन वेरी नाइसली ऑन द मैरिज प्रपोजल. तो शनिवार वाड़ा के बारे में तो टीचर ने अच्छे तरह पढ़ाया था कि भाई पुणे में शनिवार वाड़ा है, पेशवा का है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मगर वो स्टूडेंट ने कुछ नहीं लिखा. मगर जो दादा दीदी बोलते थे घर में, इनफॉर्मल टीचिंग, जो बच्चा खेलता था उस टाइम जिसने वो पढ़ा और उसने इतना अच्छा लिखा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था मैरिज प्रपोजल एक बच्चों को समझना, मगर ही रिटन वेरी नाइसली. बट एक सिस्टम है हमारी कि भाई आपने तो ये मैरिज प्रपोजल के बारे में क्यों लिखा. सो वी आर नॉट गिविंग वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस, वी आर गिविंग वैल्यू टू एग्जैक्ट आंसर, what is expected, what is written in the book, and what taught to you in the class should appear in the examination. देखो सिस्टम फेल्यूर कितना है हमारे यहाँ. तो बच्चा तो बहुत फेमस था, शायद वो फेल भी हो जाएगा मगर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा, बिकॉज हिज थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो शायद कहाँ जाएगा मुझे नहीं मालूम. देयरफॉर वी हैव द we are having many options to promote the thinking ability, but really we are working it on or not. This is the major thing. Therefore I propose interactive teaching is a tool where there is the complete involvement of a teacher and learner, both दोनों का participation चाहिए. Encourage and expect learner to participate. पार्टिसिपेट उन्होंने होना चाहिए, वो पढ़ के आना चाहिए, उसने हमने जो भी केस बता दिया उसका आंसर देना चाहिए. यूज क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट डिस्कशन. आज कुछ बच्चा बोलता है उसको झापी देते हैं और डेयरिंग ही नहीं करता बाकी बच्चा बोलने का. अभी तो अच्छी बात है कि अभी भाई नए टीचर है, नए लोग है, थोड़ी सी तो बातचीत चलती थी. हमारे टाइम तो मुंडी नीचे, क्लास में मुंडी नीचे, कॉरिडोर में मुंडी नीचे. हमारे जो भी पुणे कॉलेज के उस टाइम भी सब लोग थे टीचर, उनको सब पसंद था कि स्टूडेंट निकल जाए, मैं बाहर आ जाऊंगा केबिन से तो पूरा कॉरिडोर खुला होना चाहिए, जैसा कि मुगियाम्बो आ गया. ऐसा नहीं चलेगा. यू शुड बी फ्रेंड ऑफ अवर स्टूडेंट्स. एक लेवल है डिसिप्लिन की, वो लेवल मेंटेन करो, बाकी सब ओपन स्ट्रक्चर रखो, एंड देन विल ग्रो. गिव पार्टिसिपेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. यूज टीचिंग एड्स वेरी इफेक्टिवली. सिलेबस कंप्लीशन के लिए मत यूज करो. देयरफॉर आई से वेरी गुड टीचर्स आर इन फ्रंट ऑफ मी. देखो कितना भी बड़ा माहौल हो, कितना भी बड़ा माहौल हो, यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर है या पहले ओबामा थे, पूरा माहौल को खींच के एक लाइन में लेना. बाला साहेब ठाकरे थे, लता दीदी थी हमारी. कितना भी बड़ा माहौल हो, कि दिस इज कॉल्ड एज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ लर्नर और ऑडियंस. ये होना चाहिए. नहीं तो हम बातें कर रहे हैं, इधर चौक बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चा पीछे व्हाट्सएप कर रहा है, इंस्टाग्राम चालू है, उसका सोशल मीडिया ज्यादा चलता है. व्हाई इट इज हैपनिंग? देयरफॉर आई एम वेरी हैप्पी एंड आई प्रमोट and I will make it the system in my Pune College of Pharmacy at least to show repetitively 3D picture. और उसका ही वही डेफिनेशन, मशीन का डेफिनेशन, जो एक डिस्टिंक्शन वाले का मशीन का डेफिनेशन और रैंचो का मशीन का डेफिनेशन, उसको रियली एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट ने एक साथ सोचना चाहिए. तो ये टीचर पे भी प्रेशर आ जाएगा, भाई व्हाट वैल्यू आई शुड गिव टू द रट्टा रिसाइटेशन किया है उसको क्या वैल्यू दे दो, और लॉजिकल थिंकिंग को कितना वैल्यू दे दो. और स्टूडेंट है वो गलती करेगा ही ना. इफ स्टूडेंट हैव 100% करेक्ट आंसर, नो बेनिफिट टू द क्लास एट ऑल. इट इज माय थ्योरी.
I written in the my all preface of books. But if any student give the wrong answer, have a confusion in their answer, it gives very positive environment for a teacher to discuss that issue, and it will benefit all the class. Therefore, clap for the wrong things. Appreciate the contribution. बच्चा बोलता है तो अप्रिशिएट करो, आंसर की एक्सपेक्टेशन मत करो. Therefore, what I wrote in my current all the books preface is, classroom is the best place to speak wrong things very confidently because teacher is there to correct it. हम क्यों हैं भाई, हम इसके लिए तो है. ये जाएगा. So therefore, give a chance to make a mistakes. अभी ऐसा हो रहा है कि मिस्टेक लाइफ में नहीं करनी भाई. छोटा भी बच्चा है ना, केजी में जाता है, उसने भी मिस्टेक नहीं करनी. उसने भी उधर मार्क कमाने हैं, उसने भी रट्टा मारना है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर सी फॉर. और आता है मेहमान आता है तो बेटा बोल, तेरा नाम बोल. वो मराठी में बोलने लगता है कि मेरा माझं नाव आत्माराम पांडुरंग पवार. नहीं 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 बेटा, इंग्लिश में बोलना. व्हाट इज माय नेम, तो माय नेम चलता है हमारा इंग्लिश. तो इंग्लिश बोलने वाला बेटा बहुत होशियार रहता है और मराठी बोलने वाला नहीं. और उसको क्या हम कुछ कभी तो चांस दो मिस्टेक करने के लिए. Mistakes only add the experience. Mistakes only will make the person very perfect. डिप्रेशन नहीं आ जाएगा. और भी 3-8 में लेके जाता हूं, कौन भी उधर सुसाइड नहीं करेगा. उसको पता चलेगा कि सुसाइड करना ही एक बहुत बड़ी गलती है, तो सुसाइड भी नहीं करेगा. So we should have the school of learning to make the mistakes. तो बच्चा मिस्टेक करता है तो उसने करना चाहिए. रिपीटेटिवली करता है तो हमें रियली उस पर वो एक्ट होना चाहिए. मगर बच्चा है तो 100% उसके पास नॉलेज रहता था तो आपके क्लास में नहीं आता था. और ये बहुत जरूरी है अभी एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि ये सब काउंट होगा. पहले जो मार्क्स देते हैं उनके वहां एडमिशन शुरू में हो जाएगी पहले 5 साल. उसके बाद उनको पता चलेगा कि भाई मार्क्स से कुछ नहीं होता. जहां अच्छा पढ़ाया जाता है, जहां मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वहां एडमिशन होंगे. बाकी खाली हाथ बैठेंगे लोग. ये मैं आज बोलता हूं क्योंकि आगे जाना है कि व्हाट डू यू थिंक फॉर रीजन फॉर पुअर अटेंडेंस. कि हमारे पास अटेंडेंस बहुत कंपलसरी करनी पड़ती है, फाइन लगाना पड़ता है. क्योंकि सर जो आप पढ़ाते हैं इट इज ऑलरेडी गिवन इन द बुक. You are just converting that bookish information into the audience audible information in the class. तो हमारे पास है. और आपके क्वेश्चन भी कहाँ है सर, डिस्कस, डिफाइन एंड क्लासिफाई, वो तो हम रट्टा मार के आते हैं. If we have the questions which are case based, तो हम सर अटेंड करेंगे. नहीं तो सिर्फ हम कंपल्सरी अटेंडेंस है इसलिए अटेंड करेंगे. तो ये आंसर दिया. 90% लोगों ने बोला अटेंडेंस इज मैंडेटरी क्राइटेरिया, देयरफॉर वी आर अटेंडिंग द क्लासेस. 40% लोग बोलते हैं देयर इज नो नीड टू अटेंड द क्लास टू पास द एग्जामिनेशन. एग्जाम तो बच्चा एडमिशन लिया तो हम पास होते हैं सर, अटेंडेंस की बात छोड़ो. 40% है टीचिंग इज नॉट इफेक्टिव टू प्रोवाइड द नॉलेज, स्टूडेंट्स नॉट बॉदर अबाउट द नॉलेज. ऐसा भी आता है. अकॉर्डिंग टू यू इज द interactive teaching and case based problem solving will increase the attendance. देखो सब लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा ही होगा तो ही हम अटेंड करेंगे. केस बेस्ड आना चाहिए, केस होना चाहिए. हमारा क्वेश्चन बड़ा चाहिए, 4-4, 5-5 लाइन का क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर 5 लाइन का हुआ तो भी चलेगा. मगर हमारा आज क्वेश्चन 1 लाइन का होता है. डिस्कस और गिव अकाउंट ऑफ टैबलेट्स. तो बच्चा कुछ भी लिखे ना, अकाउंट तो बोला है, उसके इवैल्यूएशन लिखना है, मेरिट डेमेरिट लिखना है, क्या लिखना है, या सिर्फ 4 फिगर डालने हैं टैबलेट के तो भी चलता है. तो हमें क्वेश्चन पैटर्न बदलना पड़ेगा, तो ही क्रिटिकल थिंकिंग होगा, तो ही केस बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, तो ही इंटरैक्टिव टीचिंग कैन इंक्रीज द अटेंडेंस. इंटरैक्टिव टीचिंग कैन इंक्रीज द अटेंडेंस. देखो कितने लोगों ने बोला है, 75% के 100% लोग बोलते हैं कि भाई इंटरैक्टिव टीचिंग करो, केस बेस्ड एग्जामिनेशन ले लो, अटेंडेंस बढ़ेगा. अकॉर्डिंग टू यू इंटरैक्टिव टीचिंग एंड केस बेस्ड प्रॉब्लम ये हो गया. अभी नेक्स्ट
तो बात चलती है कि मॉडर्न टूल कैसे यूज किए। तो दो टाइप के मॉडल टूल यूज करें। आप पीपीटी बनाओ, वीडियो करो। आज वीडियो तो कंपलसरी है, मूव्स भी कंपलसरी है, क्योंकि नया के एनबीए में वो पार्ट किया है, तो हमें तो वीडियो बनाने हैं। तो बच्चों को बोलो ना कि कल मेरा टैबलेट कोटिंग का चैप्टर है, तो मेरा टैबलेट कोटिंग का वीडियो पढ़ के आ, तो हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि व्हाई टू कोट, हाउ टू कोट, और जो भी आपके पास डिफिकल्टी है वो हम इधर डिस्कस करेंगे। मैं 1 घंटा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, हम 15 मिनट बोलेंगे और 45 मिनट डिस्कशन करेंगे। इसको बोलते हैं फ्लिप द क्लासरूम। चालू करो, देखो कितना चेंज आता है। मगर आज तो उल्टा हो गया, बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम भी नहीं चाहिए, क्योंकि टिक मार्क करो तो 95% मिलते हैं। देखो, एक कर्नाटक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एक फेसबुक पे मार्क लिस्ट सोशल मीडिया पे पद था, एमफाम का था। तो उसमें क्या था, 98.9% वाला फर्स्ट था और 98 वाला लास्ट था। तो 2% में पूरे स्टूडेंट पास होते हैं। यानी सक्सेसफुल है, ही विल बी गुड एंटरप्रेन्योर होगा, बड़ा होगा, साहब होगा, रिसर्चर होगा, क्योंकि उसको 98 मार्क्स मिले। तो हमें इस सब बदलना पड़ेगा। मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, डिफाइन क्लासिफाई एक्सप्लेन वाली बदलनी पड़ेगी। डिस्कस एंड गिव अकाउंट ऑफ को तिलांजलि देनी पड़ेगी, श्रद्धांजलि करनी पड़ेगी उसकी। एमसीक्यू है तो रट्टा मारने का एमसीक्यू नहीं चलेगा। आज भी गेट में बहुत सारे क्वेश्चन रट्टे मारने पे जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग पे नहीं जाते। जेई का देखो, जेई का, नीट का लॉजिकल थिंकिंग पे रहता है, गेट का क्यों नहीं रहता? क्योंकि टीचर जो क्वेश्चन निकाल रहा है वो भी रट्टा मार के पास हो गया है, ऐसा लगता मुझे। तो यही बातें हम बदलेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा। नहीं तो यही चलता रहेगा कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के बोलेगा, भाई मुझे फर्स्ट वर्ड बता दे एग्जाम में, बाकी मैं सब रट्टा मार के आया हूं, मैं सब लिखूंगा, अच्छा पेपर लिखूंगा। डायग्राम पूछे या नहीं पूछे, मैं 2 डायग्राम निकालूंगा, 2 फ्लो चार्ट निकालूंगा, एक 10 पेज की 4 पेज की स्टोरी बताऊंगा। तो 10 आउट ऑफ 8 तो मेरे कहाँ नहीं गए और मैं डिस्टिंक्शन में पास हो जाऊंगा। तो यूजुअली फ्रेंड हेल्प फ्रेंड, तो फ्रेंड देता है, दूसरा द देता है, क्यों द से चालू होता है। तो हमारे सिस्टम है आज घोका वोका और ठोका, रट्टा मारने का, कुछ तो बोलने का। एग्जाम में देखो, आप पूछते हैं व्हाई देयर इज इंटरी कोटेड, तो बच्चा क्या बोलता है, सर इंटरी कोटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टैबलेट। देयर आर मेनी टैबलेट्स व्हिच आर इंटरी कोटेड, सम आर नॉट इंटरी कोटेड, एंड देयरफॉर सर देयर आर इंटरी कोटेड टैबलेट्स। क्या मिला हमें नहीं मालूम भाई। आप जितने भी सोचते हैं, सुन रहे हैं, मेरा सुन रहे हैं नहीं है मुझे नहीं मालूम, आपका अटेंडेंस है या अटेंशन है मुझे नहीं मालूम, अगर जो भी अटेंशन में है वो पक्का बोलेंगे कि कितना गलत चला है हमारा, और हम एज अ टीचर what power and responsibility we have to change this. So what type of questions in examinations useful? तो लोगों को तो चाहिए। सर्वे में मुझे ऐसा पता चला कि 90% लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन शुड प्रमोट लॉजिकल थिंकिंग, मगर एग्जाम में नहीं होता है। एग्जाम में एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमें हमेशा लगता है कि बच्चे पास हो जाए, इसलिए हमारे टिपिकल क्वेश्चन मैं स्टैटिस्टिक्स इधर डाल रहा हूँ, डिफाइन डोसेज फॉर्म, classify them, give reasons to convert drug into dosage form, give merits and demerits of tablet, give account of dosage form। ऐसा ही चल रहा है। तो देखो, एक क्वेश्चन है, आंसर आता है तो बोलो, इसके बाद डिस्कशन में बोल सकते हैं why 70 to 80% API are weak acids, 20 to 30% are weak bases। डिस्कशन करो। ये जब डिस्कशन होगा तो आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट में हमने क्या क्या पढ़ाया, उसको कंसेप्ट ऑफ पीके पढ़ाया, कंसेप्ट ऑफ सोलिडिटी, परमिएशन, बायोलॉजिकल पीएच, सेफ्टी, एब्सॉर्प्शन, इतने बातें हम ये 2 लाइन के क्वेश्चन में पढ़ा सकते हैं। एक पूरा 60 मिनट्स का पूरा लेक्चर ये 2 लाइन पे चल सकता है विथ एग्जांपल, मगर ये नहीं होता। हम क्या पूछते हैं, डिफाइन पीके विथ 2 एग्जांपल्स, राइट पीएच वैल्यूज ऑफ स्टमक, like pH value of colon, define absorption, write bioformal classification। और वो जो बोलता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसको पूछो भाई सोल्यूबिलिटी क्या है, सर वो नहीं मालूम मुझे। रट्टा क्या मारा था सर, मैंने एक टेबल था, टेबल के पीछे ऐसा लिखा था हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल,
लेस सोल्यूबल, हाईली एब्सॉर्बेबल, तो मैं रट्टा मार के आया हूँ। ये हमें सर बदलना चाहिए। मगर देखो क्या होता है, बहुत अच्छा मुझे सोशल मीडिया पे मिला था, कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आपका लास्ट स्लाइड है, क्योंकि वाइवा, हमारी वाइवा से वाइवा रहती है इंजीनियरिंग कॉलेज की वाइवा। जो मैं कराड़ में था, डिप्लोमा कर रहा था, तो एक ही हॉस्टल था हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का और हमारा। तो वाइवा का टेंशन इंजीनियरिंग कॉलेज को बच्चों को क्या आता है, वो यहाँ है। एक टीचर पूछता है, इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड यू आर फीलिंग हॉट, व्हाट यू विल डू? तो एक स्टूडेंट बोला, सर मैं विंडो ओपन करूंगा, आई विल ओपन द विंडो। तो टीचर बोला, यस, नाउ माय क्वेश्चन स्टार्ट्स। इफ टीचर सेज इफ विंडो एरिया इज 1.5 स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम ऑफ कोच इज 12 cubic meter, speed of train is 80 kilometer per hour, velocity of it is 5 meter per second, in how much time the coach will get full? अरे राम सर, मैं कहा ये बोला फंस गया। तो बच्चा तो बोला, सर नहीं होता, बच्चा फर्स्ट वाला बच्चा फेल हो गया। मगर फाइवा में हमेशा बाहर के बच्चों को बहुत भीड़ रहती है, तुझे क्या पूछा, तुझे क्या पूछा, तुझे क्या पूछा। बच्चे ने बोला ऐसा ऐसा पूछ रहा है। तो सेकंड बच्चा गया, टीचर ने बोला, सपोज यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड यू फील वेरी हॉट, व्हाट यू विल डू? बच्चा बोला, कुछ नहीं करूंगा सर, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो बोलता, कुछ नहीं करूंगा। नहीं, क्या करेंगे, हॉट हो रहे हैं? नहीं कुछ नहीं सर, मैं शर्ट निकालूंगा, पहला सूट निकालूंगा, और नहीं तो सर मैं पूरा बनियान निकालूंगा, और भी कुछ कुछ सब निकालूंगा। अरे मगर क्या होगा उससे? सर मैं कुछ भी करूंगा, आई विल डाई बट आई विल नॉट ओपन द विंडो, बिकॉज आई नो if I say I will open the window, you will ask me a very big question that I cannot answer. ऐसा हमारा चला है बहुत बार। क्या चलता है कि we ask the question to create a pressure। भाई ये जमाना गया। अभी डिप्लोमा में हमेशा बोलता हूँ, डिप्लोमा कॉलेज में सुटिक्स 2 का पहला क्वेश्चन हमेशा वो जो डिप्लोमा वाले टीचर रहेंगे, तो देखो लैटिन टर्म था, और एक एक टीचर लैटिन टर्म ना ढूंढ ढूंढ के लाता है और बोलता है कैसा पेपर था, बहुत हार्ड था ना, किसको भी मालूम नहीं। अरे मगर सिलेबस में लिखा है ना कि लैटिन टर्म शुड बी यूज मिनिमम, जो भी QIB, BID, TID ऐसे लैटिन टर्म इतने ही यूज करो। मगर हमें तो बहुत बार लगता है कि मेरा पेपर बहुत हार्ड होना चाहिए। सो डोंट मेक द सिचुएशन हार्ड, मेक इट द पॉजिटिव एंड फेवरेबल, सो दैट वो पढ़ेंगे। एक नया जमाना आ रहा है अभी NEP में, वो फेल वाली बात ही नहीं रहेगी, उधर फेल वाली बात नहीं। आप अटेंड करो, आपको क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, आप एग्जाम में इतना इतना स्कोर करो, आप पास है, फेल नहीं है, यू कैन डू बेटर भी हो जाएगा। आपको आगे जाना है तो आगे भी जा सकते हैं, कभी भी बच्चा छोड़ सकता है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कभी भी ज्वाइन हो सकता है। आपका स्टूडेंट अभी 50 ईयर का, 30 ईयर का भी बेटा आपके क्लास में बैठेगा, एक 24 ईयर का है, एक 18-20 साल का है, और एक 30-35 साल का है, सबको आपको पढ़ाना पड़ेगा। सो सिचुएशंस आर चेंजिंग। गेट एग्जाम के टाइम हमेशा बंग लेते हैं स्टूडेंट। मैं बोलता हूँ क्यों बंग लेते हैं? नहीं, गेट का पैटर्न बहुत अलग है। गेट का पैटर्न कुछ भी अलग नहीं है, आपके टीचर ने गलत पढ़ाया, आपके टीचर ने आपको हमेशा रट्टा मारने के लिए बोला। अदरवाइज if your teacher make you the conceptual teaching, he asks you a problem solved questions, case based questions, then the regular attending will be there in the classes also during gate examinations. So by how much % do you think that interactive teaching will be beneficial to quality of competitive examination like a GPAT? और देखो इतने लोग बोले, 100% लोग बोले हम कि सर इंटरैक्टिव टीचिंग और केस बेस्ड एग्जामिनेशन है तो हमें बंग नहीं करना पड़ेगा, हमारी GPAT एग्जामिनेशन भी बहुत सिंपल हो जाएगी। सो अल्टीमेट एम इज लाइफ लॉन्ग लर्नर, नॉट टू मेक अ डिग्री होल्डर। Therefore, these are the my statements I made, and not taking any statement from any big philosopher. The marks may make you a scientist, but attitude and confidence may make you industrialist. जो बच्चा पीछे भी बैठता है, फेल भी होता है, मगर उसका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस इतना है क्योंकि उसको
डर नहीं लगता। किससे डर नहीं लगता? कि मैं फेल हो गया, तो यार मैं तो फेल ही होता था, हर साल फेल होता था। तो मेरा ऐसा नहीं है कि जो भी स्कॉलर है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो गलत है, मगर मेरा ये है कि बिल्ड एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट फॉर मार्क्स। सैलरी एंड अर्निंग में मेक यू वेल्दी। बहुत सारे लोग हैं, तो मैं हमेशा टाटा का एग्जांपल देता हूँ, वेल्दी भी है मगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको मालूम है। बहुत सारे लोग हैं कि जो बोलते हैं नहीं बोलते हैं मगर सोसाइटी के नाम काम करते हैं। तो काम क्यों करना? लास्ट में मैं पवार हूँ, आत्माराम पवार को कितने लोग पहचानते हैं, आत्माराम पवार को कितने लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आत्माराम पवार की वैल्यू सोसाइटी में क्या है, वो मेरे सैलरी पे नहीं चलती। एक कौन सा भी देखो, पॉलिटिशियन देखो, कौन भी देखो, वो पैसा तो उसके पास ही रहता है, मगर वो पैसे का समाज के लिए कुछ काम किया, और वेदर वी वर्क फॉर अ सोशल एंड प्रोफेशनल रिकग्निशन, हमें मिलने के लिए कुछ काम किया, वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो अवार्ड से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सेटिस्फेक्शन मिलता है तो चलता है कि भाई मैंने जो भी कमाया है, पैसा भी कमाया है, नाम भी कमाए हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड। और बेस्ट एग्जांपल मैं लता दीदी का लेता हूँ। उनके पास कितना पैसा है मुझे नहीं मालूम, मगर जो भी उन्होंने कमाया है, रिस्पेक्ट कमाया है, इट इज कैनॉट बी काउंटेड बाय एनी मीन्स। देयरफॉर एक सिस्टम लगा हुआ आपके कॉलेज में कि फर्स्ट ईयर में बच्चा है तो एटलीस्ट 20% क्वेश्चन शुड बी ऑन द केस बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग। थर्ड ईयर में जाएगा तो थोड़ा बढ़ाओ, फिफ्थ ईयर में, फाइनल ईयर में जाएगा तो 50% करो, क्योंकि 50% हमें क्लासीफाई डिफाइन वाले भी चाहिए, क्योंकि हमें पास भी करने लोगों को। पीपीटी बनाओ भाई, वीडियो बनाओ, मगर फ्लिप द क्लासरूम करो, कंसेप्ट के लिए जाओ। और एक दिन आपके यहाँ ओपन बुक एग्जाम होनी चाहिए कि मेरा क्वेश्चन का आंसर बुक में है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैंने कहा भी क्लासीफाई नहीं बताया, कहा भी डिफाइन नहीं किया कि मेरा क्वेश्चन एक अप्लाइड क्वेश्चन है, वो जो भी हो जाएगा तो इंडिया बदल जाएगा। एंड ओपन बुक इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो इन दिस वे I appeal that we can change the system, and teacher have the very great power. And really, if you're attending my talk with attention, I expect some change will be there. Because when I started delivering lectures or training the community pharmacists from 2006, today I'm very happy, at least 10% chemist change हो गए हैं। उन्होंने फार्मेसी का स्ट्रक्चर बदला है, फर्नीचर बदले है, अपरेंट चालू किया, जिम्मेदार हो रही है। एंड सम ऑफ दे आर टेकिंग एडमिशन इन द बीफार्म प्रैक्टिस कोर्स जो हमारे पास है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एक जो फार्मासिस्ट है, रिटेलर है, वो एक बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में बोलता है, जेनरिक सस्ता है मगर उसका क्वालिटी के बारे में बोलता है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द पीपल, एंड एवरी टीचर हैव कैपेसिटी। हमें भी हमारा नॉलेज कितना है एक बात है, मगर हमारा एटीट्यूड और हमारा एक्शन शुड बी जनरलाइज, कंसेप्चुअल। रट्टा मारने के लिए नहीं है, सैलरी के लिए भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन के लिए है, तो वी कैन मेक द चेंज। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। ऑफलाइन होता तो मजा आता है, बट इट इज ओके। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी आल्सो। Thank you, sir. Session is really wonderful, and many of the participants has appreciated, sir. Now I request the participants, you can directly ask the question. Sir is here. You can unmute and ask, please. Ma'am, Ujjwala ma'am, you can ask the question.
Yes, sir. The lecture was very interactive and very informative. Thanks a lot for the same, and it was always pleasure to listen, Dr. A.P. Pawar, sir. My question is, sir, will you please give certain clues to engage the students in online teaching? Okay, how to make the online teaching. देखो अभी online teaching की तो बहुत, so I appreciated this online teaching in April 2020 when we started it. मुझे तो लगता था कि भाई, और मैंने एक्सप्लेन भी किए कि सब बच्चे कैमरा ऑन करते थे, उसका बच्चे का नाम नीचे रहता था, तो मैं जब बच्चों को बोलता था नाम के साथ, तो उसको लगता था मेरा हाउ सर इज रिकॉग्नाइजिंग मी, और वो बच्चों को तैयारी करके आनी पड़ती थी। बाद में स्किल डेवलपमेंट हो गया हमारा, और हमने कैमरा बंद करने की प्रैक्टिस चालू की। बाद में ऐसा हो गया कि बच्चा बैठता भी नहीं उधर, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करता है, जैसा आज हो गया है एसटीपी में या हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स में भी, कि गारंटी नहीं है कि सबने, मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, मगर ये अभी आदत सी पड़ गई है कि रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो और निकल जाओ। बाद में हम बोलेंगे, बच्चों का नाम लेते हैं, तो बच्चा हाँ 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 सर सर हेलो हेलो हाँ सर सर नो 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 कनेक्शन सर, ठीक है भाई चलता है। तो अभी हो गया कि उसका मिसयूज, तो कौन सा भी हो, इंटरैक्टिव ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चालू करो आप अप्लाइड क्वेश्चन पूछना। अप्लाइड क्वेश्चन आप पूछेंगे, डिस्कशन पर पूछेंगे, तो उसको अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको समझना है। अभी क्या हो रहा है, उसको समझना कुछ नहीं, रट्टा मारना है। तो आप क्या पढ़ाते हैं, वो पीपीटी हमें दे दो, हम रट्टा मारेंगे। तो पीपीटी में हमें दे दूंगी, मैं मेरा लेक्चर भी रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगी, मगर मेरा जो भी थिंकिंग का प्रोसेस है मैं चालू करूंगी, ऐसा होता है। सो ये वी प्रमोट अवर कंसेप्चुअल टीचिंग एंड केस बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, रियली पढ़ना चालू हो जाएगा। अभी पढ़ना नहीं है, अभी सिलेबस कंप्लीशन चालू है, इतना मैं बोलता हूँ। Thank you, sir. You have taken a wonderful lecture on interactive teaching for encouraging innovation and critical thinking. Sir highlighted that existing teaching is exam-oriented, but marks are not indicator for overall development. Present approach is also says that attendance is more important than attention. But we should think more for the attention. He said that lifelong learning should be there to acquire the knowledge, and information should be transferred into the knowledge. Sir suggested that our teachers should make a case, utilize the flipped classroom concept, provide video to the students before interaction. Our teaching should be more experimental, scientific. We should utilize the teaching methodology, and we should make the interactive session. Here, language is also important. So we should use the compatible language so that everyone should get understand. And we should work more on the interactive teaching. We can utilize the teaching aids. And we should encourage and expect the learners to participate. We should make a compatible environment to the student so that they can participate. And sir says that we should make the school of learning through the mystics. Case-based problems should be used, and we should prepare the questions carefully. We should use the strategies different. We can utilize the different strategies to prepare the questions according to the capacity of the student. What is the capacity of the first year, second year, like that. So we should identify these things and prepare the questionnaire carefully. Sir said that marks make you scientist, but attitude and confidence make you industrialist. Thank you, sir. Thank you for the wonderful talk. Thank you. And thank you the Jain participants. Sir. Thank you, Pawar sir, and thank you all the participants for this wonderful start of our STC with the first session.
And I hope that all the participants will have more interactions in the coming sessions. With this, we will end up our first session for today, the morning session, and then at 2 o'clock, we will be joining for another session with another link. Thank you, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.